What is cell? The cell is intersection of row and column. What is range? Range is the data range which we select for a function. No. A range means combination of cells. Combination of cells. And how many types of referencing? Two types of referencing: absolute and What is the relative. what is the difference between function and formula? Function and formula. Sir, function is predefined function like some may. Yes. Yes. Formula is set of functions. Is array of functions. Yes. That's fine. So what is the shortcut to take a new seat? New New seat. sheet. Yes. Shift F11. Shift F11, right? Yes. And what is a shortcut to take new workbook? Control N. Yes. What is the shortcut to apply row height? Row height. Sir, I don't know. I apply row height manually. Shift F9. Sorry, Shift 9. F9. No. Shift 9 to hide your row. Okay. ठीक है, sir. Okay. So make sure you have Yes. to remember. Yes, sir. Okay. Yeah. So what is the shortcut to unhide row? We again shift 9, sir. If we hide Control shift 9. Shift 9. Yes. So what is the shortcut to insert a new row and new column? If we want to insert new row, then we will press control space, then control plus sign. Yes, perfect. Yes. If we want to add new column, shift space, then control plus. Yes. Control plus is shortcut to take a new column. Control Shift plus. Okay. Okay, sir. Control Shift plus, not Control Shift plus. You have to say Control Shift plus. Okay. Yes, sir. So what is the shortcut to take a new current date? Current date. Yeah. Equal to now. No, I'm not talking about Now. function. I'm just talking about the shortcut here. Colon. Control colon. No. Yes. Colon. Control semicolon. Control semicolon. And what about the time? यार कोई भी बोल सकते हो. I'm not asking to Manmeet. Anybody can Sorry, speak. sir, मैं any time दे रही किसी को बोलने. No. बोलते जाओ. जिसको बोलना है पहले बोल दो. Okay, no problem. Okay. So control shift semicolon. What is the shortcut? Why I can use this shortcut? Fetch current time. Yes, current time. Yes, perfect. So what is the difference between count and count A? Count is used to count the all numeric data only. If we apply count A, it will count all the data, including symbols, text, all these things. Perfect. So what is the syntax of VLOOKUP? Equal to VLOOKUP. Then what select value we have to look. Then lookup value. Tell lookup value. Yeah, lookup value, sir. Yes, lookup value. Then lookup value. Then array, the range of the whole table from which we have to match the value. Then जिस भी रो या कॉलम से हमने वो लेना है उसका नंबर. Then 0 for true. 0 for exact match. Or instead of 0, what you can apply there? Sir, 1. False. False is for 0. 1 is for तो सर false तो फिर अगर मैच नहीं होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली false नहीं लेगा. No.
आप वी लुकअप में 0 और 1 जो अप्लाई कर उसके जगह पे आप फॉल्स और ट्रू भी अप्लाई कर सकते हो। फॉल्स का मतलब 0 होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ सम इफ? Sum if या equal to sum if, so जो रेंज लेनी है वो no, you have to tell me the syntax. Okay, I'm not asking about the approach. Here you have to tell me the syntax. sum if, then we have to select the range जिसमें से हमने sum if लेना है, then No, criteria. you have to say range, then criteria, then sum range. Only this. Okay. सम इफ वही करेगा, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेके वो सम करेगा, जो Yes, क्राइटेरिया yes. मैच करेगा तो उसको सम करेगा। Definitely. This is a definition. Yes. I'm just asking the Yes. syntax. Sorry. In syntax, you have to say equal to sum if, range, criteria, Yes. and sum range. Only this. Yes. Okay. So what is the difference between sum if and sum ifs? सम इफ किसी एक कंडीशन पे वर्क करेगा, सम इफ विल वर्क ऑन Speak in मल्टीपल English. कंडीशंस। Speak in English. Interviewer will Some ask you some question in if English. work, some if work only one criteria, Hmm. matching one criteria, but some ifs will work on when we have to match multiple criteria. Yes, perfect. For example, we have to fetch name as well as department as well as salary, all these things. Perfect. So what is the syntax of H lookup? It will be equal to age lookup, then data, then the value which we have to look, then data range from which we have to look the value, match the value, then column number or row number which we have to match, then true or false, or else we can apply 0. Yes. Then enter. Define H lookup. H lookup used to look the value when we have to look the value horizontally. We have to Yes, match the criteria horizontally. Yes. Yes. What is the syntax of sorry, what is the how you can define VLOOKUP? VLOOKUP works there when we have to match the criteria vertically. No, not match the criteria. VLOOKUP is used to extract data in vertical order as per lookup value. Okay, fetch data vertical order. Yes. Okay. So why do we use match? Match is used to when we have to match some value from one array to another array. No. Everybody's I'm asking, nobody is responding. Only one person I'm not teaching. Lot of person has joined this call. So why you are not responding? साक्षी आपको भी मैं पूछ रहा हूँ, गौरव आपको भी पूछ रहा हूँ, you have to respond it. Okay, मैं इसमें इंटरव्यू ही ले रहा हूँ एक तरह से. Okay, so everybody you have to participate. Okay, so now you have to tell me the exact match syntax. Yes, exact syntax of match. Exact syntax of match Yeah. equal to Yes. match. Then value we have to look up. Lookup value, yes. The value. Then the column or the row symbol. No. Row. Search is for a specified item in a range of cell. Perfect. Yes. Last And parameter then is return range. Last parameter return the relative position of that range in the item in the range. Okay, fine. Okay, and what is this? How you can define the match function? Gaurav, you have to tell me. How can I define the match function? Yes. I'm just asking the definition of the match function. Match function, try to understand here. Match function pick the position of lookup value. Okay, it can be row or it can be column. Output will be row number or column number. Okay, got it. Match function is used to take position of lookup value. Okay, so you have to define like this. So साक्षी आप नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हो, इट मींस कहीं ना कहीं वीक हो आप. ठीक है, प्लीज रेस्पॉन्ड करो, पढ़ो उसको.
डू इट सीरियसली, I have one more क्योंकि मैं query आपको today. भेजूंगा इंटरव्यू के लिए, अभी भेजने वाला हूँ। बहुत सारे ओपनिंग्स आए हैं मेरे इसमें, ठीक है, बीबीए के लिए, एसक्यूएल के लिए, पावर बीआई के लिए और एक्सेस के लिए बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। अभी मेरे पास 4 ओपनिंग हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, Sir, I have one query. या टेल मी, you have to share your screen. Question is over now. Okay, Manpreet, actually question is related to your interview, so next 2 days I will send you for interview. Okay, so make Okay, sure you sir. have to go through all the function in practical. Yes, sir. I'll revise all the functions. yes सैटरडे संडे, गाइस सैटरडे संडे को भी क्लास है, ठीक है, ऑन टाइम। सैटरडे और संडे भी आपको क्लास लेना है, सेम 10 PM। ओके, सो मेक श्योर यू हैव टू ज्वाइन। मैं आज ग्रुप में मेल भी डालूंगा, सबको बता भी देता हूँ। ठीक है, all sir. 7 days you have class, because Manpreet need to get trained in a month or 1.5 months. That's why I will have to provide all 7 days class. Okay, So thank you, sir. okay, but make sure you have to practice. Okay, Manpreet, Yes. so then you will get confident while facing the interview. So I have 2 openings now. One is in Airtel and another is in Marks International, where they are asking about the, in Airtel they are asking about the Excel, and if you have Access or SQL knowledge, it will be advantage for you. But in Marks International, you should be good in Excel. Okay, so make sure whatever topics I'm covering, you should be perfect in each topic. Okay, Yes, sir. now you have to share your screen. Yes, what is your question? My first question is related. Can we use count if function with the VLOOKUP? Count if function with VLOOKUP. In some scenario, it's possible. Okay, count Like if. we have, Mhm. मान लो हमने इसमें से काउंट करना है कि कितने इसमें से VLOOKUP वैल्यू लेनी है कि इसके इक्वल में कितने बच्चे हैं। मान लो ये मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट कितने बच्चों के पास है। मैथ सब्जेक्ट कितने बच्चों के पास है? यस, फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा यहाँ तो सारे बच्चे के पास मैथ्स है ना। नहीं, जैसे हम डाटा बैंक की ले लें क्वेरी। Mhm. आप डेटा बना दो, ठीक है, आई विल लेट यू नो। डाटा मेरे पास सर ऑफिस में बना हुआ था, एक्चुअली मुझे वहां पे जरूरत थी। मान लो ये कल डिपार्टमेंट है, कल एक, हाँ बोलो बोलो। डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वी हैव टू काउंट कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं। हाँ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर बंदे के सामने लिखा हुआ है ना, हर बंदे जी। के सामने, तो प्रोडक्शन को काउंट कर लो। यू कैन अप्लाई हियर इक्वल टू काउंट इफ टेक कंप्लीट डिपार्टमेंट रेंज, देन इन्वर्टेड कॉमा प्रोडक्शन, टेक कंप्लीट रेंज ऑफ सिंपल, डिपार्टमेंट। अच्छा वो ये तो मैंने अप्लाई कर दिया था। मैं चाह रही थी कि अगर VLOOKUP से हो जाता। VLOOKUP से काउंटिंग नहीं आता है ना, VLOOKUP से तो आप ये डेटा यही एक्सट्रैक्ट। मेरी क्वेरी थी, दिस वाज माय एक्चुअल क्वेरी। हाँ, तो यहाँ पे VLOOKUP में आपका जो होता है ना, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, ना कि काउंटिंग देता है। Okay, if you want to take count, you need to apply count, count a, count a, this types of functions. Okay, ये आपने कहा था ट्राई योरसेल्फ, ये मैंने yes, देख देख के इसको यहाँ पे कर तो कर लिया, दिया। बट मुझे ना फॉर्मूला नहीं समझ आया। मैंने देख देख हाँ के कर दिया, बट अपने आप से नहीं हो रहा। ठीक Being है, honest. कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने पूछा तो कम से कम। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है। सबसे पहले मुझे लास्ट जो स्पेस है, लास्ट स्पेस पे स्टार प्लेस करना है, ठीक है। ठीक है, अप्रोच समझा रहा हूँ। ओके, हाँ जी। on last place you have to put a star and take position of star. Take position of star means you are getting position of last space.
ओके कितने नंबर पे आ रहा है? हाँ, कितने नंबर पे स्टार का पोजीशन है, कितने मतलब लास्ट स्पेस का पोजीशन जो है कितने कैरेक्टर के बाद है, ठीक है। वही कितने कैरेक्टर में, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं कि वो मेमोरी में कौन से स्पेस पे है। ठीक है। तो आप जी सर। इसको पहले लगाओ कि मैं इस, देखो यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल लेता हूँ आपके सिस्टम का, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे काउंटिंग ऑफ स्पेस निकालना है, तो इसमें कितने स्पेस निकलेंगे, अर्थ इज राउंड में 2 स्पेस है ना, यस। और इसमें कितने स्पेस निकलेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 1 2 3 4 4। यस। तो मुझे क्या करना है, पहले ये स्पेस का काउंट लेना है, ठीक है। यस। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, व्हाई आई एम नॉट एबल टू टाइप, इक्वल टू लेंथ, एक्चुअल लेंथ ले लो आप, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस, फिर से लेंथ लो, लेकिन इस बार स्पेस को हटा के लेंथ लेना है। सो स्पेस को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, substitute function, you need to apply here substitute function to replace your space. Take reference of, no, you forgot, what is that, old text, no, text, first you need to take से reference लेना of है। text, yes, yeah, comma, inverted comma, space, you have not to put anything there, so you need to apply double quote twice, enter. You are getting how many spaces are in your data, okay, clear है। अगर मैं सेकेंड देखूं तो सेकेंड स्पेस इज लास्ट स्पेस, राइट, ड्रैग इन डाउन साइड, सेकेंड स्पेस इज लास्ट स्पेस, 12th स्पेस इज लास्ट स्पेस, Last 4th space. स्पेस इज लास्ट स्पेस। अब इसी स्पेस पे मुझे स्टार लगाने हैं, सो यू नीड टू अप्लाई वन मोर सब्स्टिट्यूट, लेंथ के पहले आप सब्स्टिट्यूट लगाओ, हाँ, टेक रेफरेंस ऑफ डेटा, यस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस ले लो, कॉमा, विदाउट इन्वर्टेड, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं, यहाँ पे स्टार लगाना है तो स्टार लिखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा, स्टार लगाने का क्या मतलब, मेन यहीं पे अटकी थी, हम स्टार क्यों लगाते हैं? स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि मुझे लास्ट स्पेस पे स्टार लगा के लास्ट स्पेस का पोजीशन लेना है, ठीक है। लास्ट स्पेस पे स्टार लगा देंगे तो स्टार का पोजीशन जब लेंगे तो लास्ट स्पेस का पोजीशन आ जाएगा, एंटर करो, नाउ यू विल गेट स्टार ऑन लास्ट स्पेस। ये क्या है, गो देयर, गो अप, यहाँ पे आपने ये लिया, कुछ तो गड़बड़ है। फाइंड करेंगे ना सर? नहीं, फाइंड तो तब करेंगे जब स्टार लगा देंगे तो, एक मिनट, गिव मी कंट्रोल, आई लेट यू नो समथिंग इज रॉन्ग हियर, ओके, वेट, हाँ, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ आपने गलत कर दिया, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब्स्टिट्यूट, ओके, आई एम टेकिंग रेफरेंस ऑफ डेटा, कॉमा, मुझे स्पेस के पास स्टार लगाना है, अगर मैं इतने में आप छोड़ देता हूं तो सारे स्पेस पे स्टार लगा देगा, देखो लगा दिया, हाँ जी। लेकिन मुझे सारे स्पेस पे स्टार नहीं लगाना है, मुझे लास्ट स्पेस पे स्टार लगाना है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लास्ट स्पेस का पोजीशन ले लूं, लास्ट स्पेस का पोजीशन मतलब कितने नंबर के स्पेस पे आपको लगाना है, तो आप यहाँ पे लास्ट स्पेस का पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे लगाओगे, अगर मैं यहाँ पे अर्थ इज राउंड में सेकंड स्पेस पे लगाऊंगा, सेकंड लिखूंगा, सेकंड स्पेस पे स्टार लगेगा, देखो लग गया। Yes, sir. अगर मैं अभी मैं ड्रैग करूंगा तो सब में सेकंड स्पेस पे स्टार लगेगा सिर्फ,
ठीक है, देखो है ना, सारे में सेकंड स्टेज पे स्पेस पे स्टार, लेकिन इसको हमें डायनेमिक बनाना है कि हमें लास्ट स्पेस पे स्टार लगाना है। तो लास्ट स्पेस पे स्टार लगाने के लिए ये जो 2 आ रहा है, 2 हमें मैनुअली नहीं डाल के वहां पे लगाएंगे लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द डेटा, ठीक है, माइनस फिर से लेंथ, ठीक है, लेकिन स्पेस को रिमूव करके लेंथ। तो सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट में मैं डेटा का रेफरेंस, उसके बाद स्पेस को रिमूव करना है विदाउट स्पेस। अब एंटर करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, स्पेस कितने हैं वो आता है इसका आउटपुट, है ना। सर, यस सर, अगर इसमें 2 आता है तो 2 इज लास्ट स्पेस, इसमें 12 आता है तो 12 इज लास्ट स्पेस, ठीक है। तो लास्ट स्पेस पे स्टार लग जाएगा, इस सब्स्टिट्यूट के थ्रू लास्ट स्पेस पे स्टार लगा दूंगा, ये लो आ गया। अब सब में लास्ट स्पेस पे ही स्टार लगेगा, देखो, है ना, क्लियर है। जी सर, यहाँ तक हो गया। यहां तक हो गया, तब तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे। स्टार का ही, हाँ, अब अभी बताता हूँ। अब स्टार का अगर मैं पोजीशन निकालता हूं तो मतलब लास्ट स्पेस का पोजीशन निकाल रहा हूं ना, हाँ जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूंगा फाइंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टार कॉमा एंटर। अब स्टार का पोजीशन मतलब लास्ट स्पेस का पोजीशन, है ना, यस सर, यस सर, कंट्रोल डी, यू आर गेटिंग लास्ट स्पेस पोजीशन, ठीक है। अब लास्ट स्पेस का पोजीशन, टोटल लेंथ में लास्ट स्पेस का पोजीशन माइनस करेंगे, टोटल जो एक्चुअल लेंथ है डेटा का, एक्चुअल लेंथ ये है हमारा, एक्चुअल लेंथ जो डेटा का है माइनस करेंगे लास्ट स्पेस का पोजीशन। एक्चुअल लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होगा, लास्ट स्पेस का पोजीशन थोड़ा सा कम होगा, तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो इतने हमारा बच गए कैरेक्टर, इतने ही कैरेक्टर राइट साइड से उठाएंगे। अब यहाँ पे राइट का फंक्शन लगा देंगे और मेन डेटा का रेफरेंस ले लेंगे। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ऐसा नहीं है कि सबसे थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स आपका, है इसलिए थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन ये करोगे ना आपका माइंड अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा, पूरी दिमाग लगती है इसमें करने में, लॉजिक हाँ ही जी सर, लॉजिक, ठीक है। यस सर, इसका एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ, ठीक है, जब आप Yes, sir. सीखते हो तो मुझे भी बताने में अच्छा लगता है। तो एक तरीका बताता हूँ, वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया, मैंने लिखा, चार्ज वेट कनेक्ट करूँ सर। वेट, आई एम जस्ट राइटिंग, ओके, हियर आई एम टेकिंग इक्वल टू रिपीट, एक रिपीट फंक्शन होता है। अगर आप स्टार को मान लो मैं रिपीट करना चाहता हूं कितने बार, जितना इसका लेंथ है, इसका जितना इस डेटा का लेंथ है, जितना भी लेंथ है उतने स्टार लगा देगा, ये देखो रिपीट उतने स्टार। अब देखो इसमें आएंगे, जितना भी है इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है इस डेटा का, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें उतने स्टार ही, लगा देते हैं। हाँ, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतने स्टार लगा रहा है ना, यस ठीक सर, है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार नहीं लगाना है, स्पेस डालना है, ठीक है। क्या करना है, स्पेस बीच में डालना है, लेकिन स्पेस कहाँ डालना है, वो जो ब्लैंक है उसी के बीच उतने ही स्पेस डाल देना है। सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट लगाने के बाद इसका रेफरेंस ले लेंगे, मुझे जहां स्पेस है, ठीक है, उसमें उतना ही स्पेस और डाल देना है जितना इसका लेंथ है। हर स्पेस पे इसका लेंथ मान लो 12 है, ठीक है, इसका लेंथ अगर 12 है तो हर स्पेस पे 12 लेंथ और डाल देगा। एंटर करो, देखो सब में हर स्पेस पे उतना ही लेंथ डाल दिया, मतलब स्पेस सब में देखो, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, ज्यादा कैरेक्टर है, इसमें टोटल कैरेक्टर कितना है, टोटल मान लो 100 कैरेक्टर है इसके अंदर, तो हर स्पेस के बीच इसने 100 स्पेस और डाल दिए, ठीक है। यस सर, यस सर, अब क्या करना है, मुझे राइट से
देखो ये बस इतना ही समझने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लगाओ राइट, ठीक है। राइट फंक्शन में इस आउटपुट में मेरे को कितने कैरेक्टर पिक करना है, जितना इसका लेंथ है, कॉमा Yes, sir. जितना इसका डेटा का लेंथ है उतने कैरेक्टर पिक कर लेना, ठीक है। अब एंटर कर दो, Yes, sir. ये लो लास्ट स्पेस आ गया, सॉरी लास्ट वर्ड आ गया। Last word. लेकिन इसमें जानते हो लास्ट वर्ड तो आ गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो इसको हम लोग क्या किससे हटाएंगे एक्स्ट्रा स्पेस को, ट्रिम से हटा दो, हो गया बस। ये Trim थोड़ा function सा, automatically space हटा देता है। हाँ ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है, ये लो हट गया। तो ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो अभी आप। हेलो, दोनों में से एक फंक्शन आपको याद रखना है, कोई पूछने में हेजिटेट मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था, और कोई डाउट है? मिडिल नेम हो गया आपका मनप्रीत? यस सर, यहाँ पे मिडिल नेम ही कर रही थी, बस यहाँ पे राइट फंक्शन लगाना था, वो समझ कर में आ दी। गया ना? पर नहीं, राइट फंक्शन लगा के भी ये वो नहीं दे रहा। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका, कि आपने मिडिल नेम तो पिक ही नहीं किया ना। कहाँ पिक किया इसमें मिडिल नेम? आपको मिड का फंक्शन ही लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाए हो ना, यहाँ पे वही सेम फंक्शन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यस सर। जिसमें एरर आएगा उसमें इफ एरर लगा के लिख देना नो मिड नेम, ठीक है। ओके सर, यस सर, मैं ट्राई करूंगी। मिड का ही फंक्शन लगाना, जिसमें एरर आएगा फिर से शुरू में इफ एरर लगा देना, लास्ट में लिख देना नो मिड नेम, ठीक है। यस सर। नाउ मूविंग ऑन नोट टॉपिक। कर लूं एक मिनट? हाँ हाँ नोट कर लो, यू कैन नोट डाउन। आपको सैटरडे संडे तक मुझे पिवट का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। सर संडे मॉर्निंग में ये सारी प्रैक्टिस एक बार रिवाइज कर लूंगी। हाँ हाँ सारे रिवीजन कर लो, क्योंकि आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आप उसी तरह से लग जाओ, ताकि मैं आपका जी सर। इंटरव्यू करा दूं, यस ठीक है। जितना जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी इंटरव्यू करा दूंगा, नौकरी और लग जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट डेट फंक्शन, यू हैव टू मूव इन राइट साइड, मूव डेट करो। फंक्शन पे Yesterday I told you about the date function. Date function, basic date function I have already covered. Now I will cover little bit advanced. Okay, little bit advanced date function. So you can see here in S column you have 2 holiday. This is a list of the holiday. Okay, यस सर। 14th and 20. What is this? 28th. 14th January and 28th January was holiday. Okay, so you have to put your pointer in T2 and try to understand what is the definition. You can put your pointer on comment and you can check what is the definition of network day. You can see here return day difference between start date and end date, ओके, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। अगर मान लो मैं पूछता हूं सैटरडे संडे को हटा के 20 तारीख से 30 तारीख के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो मैक्सिमम मुझे लगता है क्या 11 में 4 माइनस कर दो, हो जाएगा 7 डेज, राइट, आना चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। तो 2 दिन आप सैटरडे संडे को बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड करेगा और आपको 2 डेट के बीच का डिफरेंस देगा। सो यू नीड टू अप्लाई हियर इक्वल टू नेटवर्क डे, डेज आ रहा है सर, डेज हाँ ही आएगा। हाँ हाँ नेटवर्क डेज आएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ A2 हैज 1st जनवरी यस। कॉमा A32 में क्या होगा बताओ, 31st जनवरी,
Yes, sir. होगा ना? देखो जाके, ये तो- वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, आप वन बाय वन जाओ। 31 Yes, sir. जनवरी है ना? Yes, sir. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो निकाल देगा सैटरडे संडे को हटा के। अब एंटर करो, यू विल गेट हियर 23। 4 सैटरडे संडे है तो 4 सैटरडे संडे है तो 8 डेज लेस कर देगा। अब 31 में 8 डेज लेस करेगा तो कितना आएगा? 23। गॉट Yes, sir. इट? Yes, sir. सपोज यू हैव 2 हॉलीडेज, सैटरडे संडे के अलावे 2 हॉलीडे है which is available in S2 and S3. I have created list of the holiday. Okay, so you need to exclude, yes, you need to exclude these 2 holiday. So you need to apply Yes, sir. equal to network day A2 comma A32। यही आपने लिखा ना? S, why you are taking S? I'm just asking start date and end date. Start date is 1st January, end date is 31st of January. Okay, Yes, sir. and you have to take comma here 32। टाइप कर दिया करो। फिर तो सर आपने बोला था मैनुअली ना लिया करो। हाँ, ले लिया करो, अभी थोड़ा सा दूर है। A32. You can type A32। okay, comma last parameter is holiday, which is a optional parameter. So you need Yes, to sir. take reference of S2 and S3। You have to take reference of S2 S3। range ले लो S2 S3 का। No, no, not like this, you have to take range। ले ली सर। S2 S3 ले लिया ना, कॉलन आ गया। हाँ ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर करोगे तो 21 डेज आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 हॉलीडे भी एक्सक्लूड किया। क्लियर है? Yes, sir. By default network day function exclude the Saturday Sunday। Okay, Yes, sir. now I'm telling you how you can exclude your holiday as per your convenience। It's not mandatory all the company will give you Saturday Sunday off। Okay, Yes, sir. so in that scenario, how you can exclude only Sunday, how you can exclude only Friday? You have another function which is called network day INTL। You need to write here equal to network day INTL। नेटवर्क डे आपके इसमें है नहीं, आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ओके, नेटवर्क डे INTL। आप मेरे पास वो लिंक भेज देना जहाँ से परचेज कर सकती हूँ मैं ये। किसी हार्डवेयर शॉप में जाना, बोलना क्या इंस्टॉल कर दे MS ऑफिस लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ठीक है 200 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक stop your sharing। I'm sharing my screen। okay, यू। यस I'm telling you network day INTL function। okay, that's why I'm Yes. just opening my Excel। okay, so here I'm moving on same। हाँ, you can see here I'm just telling you network day INTL function। You need to apply here network day INTL। okay, comma start date ले लिया A2, not comma, sorry, A2 start date is A2। A2 means 1st of January। A32 is 31st of January, comma you have to decide which day you want to exclude। okay, suppose my holiday is only on Sunday, so at that time I will type here 11। okay, bracket close करो, आउटपुट बताओ कितना आएगा? 31 minus 4 27। संडे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 संडे। ठीक है, लो आ गया। Now I'm telling you how we can apply network day INTL to exclude only Sunday as a week off, and you have to exclude 2 holiday also, these 2 holidays। okay, so you need to apply here 4 parameters: network day INTL, take reference of A2, take reference of A32 is 31st of January।
comma, and you have to exclude only Sunday. You need to type here 11 and you need to take here holiday list. Holiday list यहाँ पे है हमारे पास. Okay, enter करो. You will get output as a what? 25. 25. Yes. Clear? Yes, sir. Now I'm talking about the work day. Work day and work day international. Okay, so you need to apply here work day function. मान लो आज के डेट में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए. कंपनी गिविंग यू 15 days टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, आपका वीक ऑफ सैटरडे संडे है तो 15 days आपको कंपनी देती है, तो 15 बिजनेस डे दे रही है. ओके, इट मींस 15 days मींस 3 week है ना. 5 दिन का हमारा ये होता है मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, Yes, sir. 15 days दिया तो 15 हो गया 3 weeks. Now you Yes, sir. need to enter what will be completion date. You will get here completion date. 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट कर लो. ठीक है, ठीक है. दिस इज माय कंप्लीशन डेट. आज मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला तो इस डेट में कंप्लीट होगा ये. ठीक है. Yes, sir. Now I'm just telling you work day